شیرو دبستان شیر و نثر کے زیر تمام ایک مسرت شام سخن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور صاحب صدر کی اجازت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ شام سخن کا آغاز جو ہے تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے عمران صاحب۔ جی عمران صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ عمران صاحب کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ دبستان شیر و نثر کی اس پروکار اور پرمسرت بزم میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ صدارت کی مسند پر تشریف فرما ہے محترمہ سبین سیف صاحبہ، مہمان خصوصی ہیں پروفیسر مسعود قریشی صاحب اور حسین شیرازی صاحب لاہور سے۔ دبستان شیر و نثر کے منتظمین کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ایسی بس سجائی جائے جس میں نہ صرف شاعری بلکہ نثر لکھنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں شعر و نثر کی بہت سی قدآور شخصیات کی رفاقت جو ہے ہمیشہ سے میسر جو ہے وہ رہی ہے، اور ہمیشہ ان کی نگارشات سے محظوظ ہوتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں دعوت دوں گی سید محمد علی تنہا کو۔ سب سے پہلے یہ اشعار پیش کروں گی۔ بجھائے بجھ نہ سکیں گے کبھی بقا کے چراغ، بجھائے بجھ نہ سکیں گے کبھی بقا کے چراغ، ثنا کی نوک پہ روشن ہے کربلا کے چراغ۔ زمانہ اب بھی اس در سے نور پاتا ہے، زمانہ اب بھی اس در سے نور پاتا ہے کہ جس کی خاک سے روشن ہوئے ہیں وفا کے چراغ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ان خوبصورت اشعار کے خالق تھے سید علی تنہا صاحب۔ 2 کتابوں کے یہ مصنف ہیں، 2 کتابوں کے مصنف ہیں۔ لفظ کرتے ہیں گفتگو تیری ابھی امکان باقی ہے۔ 3 ادبی تنظیموں کے یہ سرپرست ہیں۔ فروغ اردو ادب کے لیے گراں قدر کام کر رہے ہیں۔ ادبی حلقوں میں انہوں نے اپنی پہچان عمر تنہا کے نام سے بنائی، لیکن حال ہی میں انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ مولا علی کی نسبت سے بے انتہا محبت کی وجہ سے ان سے منسوب کر لیا ہے۔ اب ان کا اصل نام سید چراغ علی جبکہ قلمی نام سید علی تنہا ہے۔ جی سید علی تنہا صاحب اپنا کلام پیش کیجیے گا۔ جی سید علی تنہا صاحب نام۔ سید علی تنہا صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، ابھی میں نے دوبارہ جوائن کیا ہے۔ آواز اب آ رہی ہے مجھے؟
جی 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 اپنا کلام پیش کیجیے گا سر۔ بہت شکریہ، میں تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام ٹیم کا اور دبستان شعر و نثر کا، جو ادب کی ترویج و ترقی کے لیے ہمہ وقت کوشاں اور مصروف عمل ہیں، اور سبین صاحب صاحبہ کا ان سے ماضی میں ایک خوبصورت ادبی رشتہ ہے، اور اللہ پاک ان کا شفیق سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ تو بہت تمام دوست جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آپ آ کی رہی ہے، آواز لیکن آ مجھے رہی تصویر نہیں آ رہی ہے کسی کی بھی، صرف ایک عذرا صاحبہ کی آ رہی ہے، مجھے ابھی تک کسی کی تصویر نہیں آ رہی ہے، کیوں؟ جی جی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، تصویر نہیں آ رہی مجھے کسی کی بھی۔ سبھی کی آوازیں میں صاف طور پر سن پا رہا ہوں۔ جی آپ آڈیو لوگوں کی بہت آواز صاف آ رہی جی 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 اب آپ نظر آئے، آپ کا تعارف؟ نجیب احمد نجیب، حیدرآباد نجیب، دکن سے۔ آداب آداب۔ عداوت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا ہے نام آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، جی جی کلام پیش آپ نے کیجیے۔ پہچان لیا ہوگا۔ سید علی طلحہ ہاں صاحب بات مجھے لگتا ہے ہوئی تھی ڈسکنیکٹ ہو ہماری، گئے پھر۔ بہت شکریہ۔ جی نہیں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 کلام پیش کیجیے جی جی جناب۔ آپ اپنا کلام پیش کیجیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی غزل کے چند شعر آپ سب کی جی خوبصورت سماعتوں کی نظر ہے۔ جی جی ارشاد۔ جب اپنا گاؤں چھوڑ کے جانا پڑا مجھے، جب اپنا گاؤں چھوڑ کے جانا جب پڑا، اپنا گاؤں چھوڑ کے جانا پڑا مجھے، آنکھوں سے لہو کو بہانا پڑا مجھے، آنکھوں سے پھر لہو کو بہانا پڑا مجھے، اور یوں ہوا کہ درد و علم دور ہو گئے، کیا کہنا؟ پھر یوں ہوا کہ درد و علم دور ہو گئے، اتنا ہوا کہ جان سے جانا پڑا مجھے۔ کیا کہیں، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ اتنا بہت خوب۔ ہوا کہ جان سے، بہت شکریہ سر جی۔ اور میں نے تلاش رزق میں خود کو گوا دیا، میں نے تلاش رزق میں خود کو گوا دیا، دور اپنے آپ سے جانا پڑا مجھے، خود دور اپنے آپ سے جانا پڑا مجھے، لگانا پڑا مجھے، اور برسوں سے دل میں پیار کا جلتا دیا، برسوں سے دل میں پیار کا جلتا ہوا دیا، اپنے ہی آنسوؤں سے بجھانا پڑا مجھے۔ بہت اچھے تنا صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ کچھ مجھے لگ رہا ہے کنیکشن میں کوئی پرابلم ہے، وائی فائی۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں ڈاکٹر ممتاز منور، پونے انڈیا سے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ وہ میرا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ جی 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 آپ کا کلام، جی 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 بس 2-3 اشعار ابھی رہتے تھے، وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، معذرت خواہ جی ہوں جی آپ آپ لوگوں پورا سے۔ کر لیجئے، اپنے اشعار مکمل کیجیے گا۔ ارشاد برسوں ارشاد۔ سے دل میں، بہت شکریہ سر جی، برسوں سے دل میں پیار کا جلتا ہوا دیا، کیا کہیں، اپنے ہی آنسوؤں سے بجھانا پڑا مجھے، بہت خوبصورت کیا شعر ہے، بات بہت خوبصورت شعر۔ کیا بات ہے۔ اور اس دوزخ شکم کو بجھانے کے واسطے، کیا کہنے، اس دوزخ شکم کو بجھانے کے واسطے کیا گاہ ہوا ضمیر سلانا پڑا مجھے، بہت خوبصورت شعر، سبحان اللہ، بہت بہت خوب، خوبصورت۔ بہت عمدہ خیال۔ اس دوزخ شکم کو بجھانے کے واسطے
तेईस, तीन चार पाँच छः सात 14, दुनिया के रंग देखने की जमीन नफरत का एक शजर भी लगा पड़ा मुझे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या सुभान बात को तो एक दो चलें जी। उनका नेट का मसला है तो जी जी। हाँ जी, बहुत खूब उमर तन्हा साहब। अब मैं दावत दूंगी। ख्यालात जब तज़ीन तरतीब चाहते हैं तो अल्फाज का लिबादा ओढ़ लेते हैं। जब बन सवर कर निखर कर जुमलों और फिक्रों के सांचे में ढलते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत की नुमाइंदगी करते हैं, मुख्तलिफ ज़ावियों से करते हैं, यही ज़ाविये नसर कहलाते हैं। अब मैं आपका तारुफ एक नसर निगार से करवाने जा रही हूँ। मोहम्मद ज़ियाउल हक मलिक साहब डिप्टी सेक्रेटरी हैं जनरल तहरीक नफाज़ उर्दू के और कॉलम निगार हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बज़्म नूर के मुंतजिम हैं। जी मोहतरम मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब अपना नसरी कलाम पेश कीजिएगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल आपकी तक आवाज आ रही है आपकी। साफ सुनी दे रही। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? जी जी, बिल्कुल पहुंच रही। दबिस्तान शेर नसर और बज़्म ज़राफ़त, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहतरमा साहिबजादी प्रोफेसर अज़रा वसीम साहिबा। ख़वातीन हज़रात, वो इसलिए कि बड़े बड़े मुदब्बिर, बड़े बड़े दानिशवर, बड़े बड़े शुअरा और बड़े बड़े अद्दबा को तो अमूमी तौर पे तमाम ही दावत दिया करते हैं अपने अपने प्रोग्रामों में, अपनी अपनी मजालिस में, अपने अपने बज़्म में, लेकिन ऐसा ख़ास इनाम ऐसी ही उस्ताद शख्सियात के हिस्से में जाता है जैसी प्रोफेसर साहिबा हैं कि वो मेरे जैसों को, तालिब इल्मों को भी गुफ्तगू करने का, सबक सुनाने का मौका मुहैया किया करती हैं। कुर्सी सदारत पे मौजूद हैं मोहतरमा सबीन सैफ साहिबा, बड़ी ही काबिल एहतराम है, मैं इनकी इजाजत से जी। और एक एतराफ मुझे आप सबके सामने ये करना है कि आप बिला शक व शुबा इल्म व अदब और दानिश के हवाले से मुझसे आला हैं, बाला हैं। मेरा आपके सामने गुफ्तगू करना सिर्फ सबक सुनाना ही होगा। आज का मौजू मैंने भाई ये आपका उसने जाना है, आप बहुत बड़ी शुक्रिया। शख्सियत के मालिक हैं, मुझे बड़ी आज का खुशी, जो बड़े अरसे आज बाद का जो आपसे मौजू, बहुत मिलकर। शुक्रिया आपका अली साहब, आपको बहुत शुक्रिया। आज का जो मौजू था बड़े कलील से वक्त में, बहरहाल वक्त कलील भी बड़ा होता है, बड़ा कीमती होता है, अल्फाज तो चंद ही होते हैं, जो कह दिए जाएं तो बस काफी रहते हैं। इस आलम रंगोबू में जिंदगी, इस जिंदगी का खात्मा और मोहब्बत, इन तीनों का आपस में एक रब्त है। मैं आज उसके मुतालिक 2-3 मिनट आप सबकी खिदमत में गुजारिश जी करूंगा। मैं कोई कलम नगार जी नहीं हूँ, कोई ऐसा बड़ा कोई मुफक्किर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि जो हयात माबादल मौत है उसका भी इस मोहब्बत के साथ रब्त है। ख्वातीन हज़रात, जिस वक्त मैं अक्सर ख्याल करता हूँ, सोचता हूँ कि जिस वक्त मैं किसी एक इंसान से, किसी एक साहिब से, साहिबा से मैं ये कहता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो ये कहने के बाद मुझे अपने ज़मीर के कटहरे में ढेर सारे सवालों के जवाब देना पड़ते हैं। फर्ज किया मैं कहता हूँ अपनी मोहतरमा अहलिया मोहतरमा से कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो मुझे अपने ज़मीर को जवाब देना पड़ता है, तो फिर बेटी से क्या है, फिर माँ से क्या है,
پھر مجھے اپنی بہن سے کیا ہے، میرے ساتھ جو دفتر میں کام کرنے والی صاحبہ ہیں، جو میرے ساتھ مجلس میں بز میں تشریف فرما ہیں محترم بھائی صاحب، میرے ساتھ جو بھائی ہیں بیٹے ہیں، ان سب سے مجھے کیا ہے۔ خواتین حضرات، میں جب سوچتا ہوں میرے مطابق تو مجھے خیال گزرتا ہے کہ محبت کے حوالے سے ہم انسانوں کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو اہل محبت ہیں اور ایک وہ جو اہل محبت نہیں ہے۔ محترمہ صدر صاحبہ، جی جو اہل محبت ہیں جی وہ اپنی تمام زندگی اپناتے چلے جاتے ہیں۔ جس وقت ہم محبت کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو محبت ہمارے اوپر کچھ تقاضے اور ذمہ داریاں عائد کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ محبت ہمارے جو تعلق، جو رشتہ، جو ربط ہے، میں اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں ابھی، وہ اگر میری بیوی کے ساتھ ہے تو اس رشتے کا ایک تقاضا ہے خواتین حضرات۔ محبت اگر مجھے میری بیٹی سے ہے تو اس رشتے کا، اس ربط کا ایک تقاضا ہے، ذمہ داریاں ہیں۔ محبت اگر میری ساتھ کام کرنے والی کولیگ سے، میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ادیبہ شاعرہ سے ہے، میری محبت میرے ساتھ بیٹھے میرے بھائی سے ہے، میری محبت میرے باپ سے ہے، میری محبت میرے وطن سے ہے، میری محبت میرے قلم، میری گاڑی، میری پینسل، میری پگڑی، میری دھوتی سے ہے، تو ان سارے رشتوں کے، ان سارے ربط کے تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کو صحیح معانی میں خواتین و حضرات پورے کرنا اہل محبت کا شیوا ہے۔ کیا سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات۔ بہت اچھا۔ خواتین حضرات، کہ جو اہل بیوی سے، اپنی محبوبہ سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، خود سے، اپنے اللہ سے بھی وہ محبت، اپنے بھگوان سے وہ محبت نہیں نبھا پاتے، کسی سے بھی وہ محبت نہیں نبھا پاتے۔ بالکل درست فرمایا۔ میں بڑا شکر گزار ہوں، آپ اساتذہ کا ایسا لفظ کہنا میرے لیے تمغہ ہے، احساس ہے۔ اب میں چلتا ہوں زندگی کے خاتمے کی طرف، جسے ہم موت کہتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم محبت کو نبھاتے ہوئے، اپنی یہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحے گزار رہے ہوں، تو پھر جس وقت وہ لمحہ جسے ہم اختتام زندگی کہتے ہیں، اس تک ہم پہنچتے ہیں تو ہم بڑے تسلی میں ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارا بڑا خیر مقدم کیا جاتا ہے، ہمیں بڑے اعزازات سے نوازا جاتا ہے، جسے ہم مسلمان جنت کہتے ہیں، دوسروں کے سورگ کہتا ہے، کوئی کیسے کچھ کیسے کچھ کیسے۔ تو اس جو زندگی کا اور جو موت کا ربط ہے، اس میں اگر محبت موجود ہے، ہم اہل محبت میں سے ہیں، تو وہ اخیر بڑا کمال کا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ رشتے نہیں نبھائے، ہم نے خود سے نہیں نبھایا، ہم نے دوسروں کی حق تلفیاں کی ہیں، ہم نے بیوی کا حق پڑوسن کو دے دیا اور پڑوسن کا حق بیوی کی طرف بڑھا دیا، ہم نے ساتھ بیٹھی کولیگ کو بہن کی جگہ پہ بٹھا دیا اور بہن کو ساتھ والی کولیگ کی جگہ پہ بٹھا کے یہ سارا گڑبڑ کر دیا، تو پھر ہم اہل محبت میں شمار نہ ہو پائیں گے۔ وقت بڑا ہی ایسا ہے اور آپ سب اساتذہ موجود ہیں، اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آئیے آج پھر مل کے تجدید عہد کرتے ہیں۔ آپ سب بڑے ہیں، میں آپ سب سے چھوٹا ہوں، اور آپ سب کو سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو اہل محبت کے دائرے میں داخل کر کے، ہم اپنی زندگی کو اہل محبت کا ہنر سکھا کے، ان کا طرز عمل سکھا کے وقت گزاریں گے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ تمام معزز مہمانان گرامی کا، رجب چودھری صاحبہ تھی، سبین صاحبہ ہیں، محترم علی تنہا صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، عذرا وسیم صاحب، میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا یہ کہتے ہوئے کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ جی عذرا وسیم صاحبہ، آگے بڑھائیے مشاعرے کو۔ جی بہت شکریہ۔ کچھ حسن نازنی بھی بہت دل فریب ہے، کچھ حسن نازنی بھی بہت دل فریب ہے، کچھ ہم بھی عشق وشق میں ہیں انتہا پسند۔ روٹھا ہزار بار مگر مہرباں رہا، اس پیکرے حیا کی ہے یہی ادا پسند۔ پہلے وہ اپنا نامہ اعمال دیکھ لے، جس کو نہیں ہماری ذرا سی خطا پسند۔ ان خوبصورت اشعار کے خالق ہیں اختر چیمہ صاحب۔ اختر چیمہ صاحب کا تعلق سیالکوٹ سے ہے،
लेक्चरार हैं, कॉलम निगार हैं। इनका शेरी मजमुआ शहर वफा ज़ेरे तबा है। मैं मुल्तमिस हूँ अख्तर चीमा साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। जी अख्तर चीमा साहब। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, जिंदा रहिए, सलामत रहिए। ये गजल के चंद अशार कि इसलिए लुत्फो अनायात के हकदार नहीं, सुभान अल्लाह, क्या कहें, इसलिए अच्छा मिसरा लुत्फो अनायात के हकदार नहीं, हम किसी जिल्ले इलाही के तरफदार नहीं। क्या कहें, सुभान अल्लाह। बहुत खूब चीमा साहब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया जी, नवाजिश। इसलिए लुत्फो अनायात के हकदार नहीं, हम किसी जिल्ले नहीं। सुभान अल्लाह। अपना मसलक है फकत हक की वकालत करना, अपना मसलक है फकत हक की वकालत करना, ही के नमक खार नहीं। साथ बेखौफ खतर देते हैं मजलूमों, साथ बेखौफ खतर देते हैं मजलूमों का, तनी है यजीदों क्या कहने, भी बहुत अच्छे हो। है चल कर आए, अपने कदमों पे जिसे आना है चल कर आए, अपने कदमों पे जिसे आना है चल कर आए, हम भी मगरूर हसीनों के तलबगार नहीं। क्या कहने, हम भी मगरूर हसीनों के तलबगार नहीं। क्या कहने, और खुद खुदावंद जहां उसके लिए काफी है, क्या कहने, खुद खुदावंद जहां उसके लिए काफी है, जिसका कोई भी जमाने में मददगार नहीं। बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और शेर मुलाजा फरमाएं कि कत्ल गाहें न सजा नारे तकबीर के साथ, कत्ल गाहें न सजा नारे तकबीर के साथ, दिल दुखाने का भी इस्लाम रवादार नहीं। क्या कहने, बहुत खूबसूरत। दिल दुखाने का भी इस्लाम रवादार नहीं। और आपको चाहा दिलो जान से ममनून रहो, क्या कहने, आपको चाहा दिलो जान से ममनून रहो, आप इतने भी हसी और तराहदार नहीं। बहुत खूबसूरत। आपको चाहा दिलो जान से ममनून रहो, आप इतने भी हसी और तराहदार नहीं। और कसरे शाही के दरो बाम लरजते क्यों हैं, कसरे शाही के दरो बाम लरजते क्यों हैं, अपने हाथों में कलम है कोई तलवार नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। कसरे शाही के दरो बाम लरजते क्यों हैं, अपने हाथों में कलम है कोई तलवार नहीं। और शेर देखिए कि कलमाए हक सर दरबार सुनाते हैं अगर, सुभान अल्लाह, कलमाए हक सर दरबार सुनाते हैं अगर, हम भी तो शहरी हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, हम भी तो शहरी हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। और हर कोई मस्त मए हर कोई मस्त मए हर हिरसो हवस फिरता है, हर कोई मस्त मए हिरसो हवस फिरता है, अब कोई जिनसे मोहब्बत का खरीदार नहीं। क्या कहने, अब कोई जिनसे मोहब्बत का खरीदार नहीं। और आखिरी शेर मुलाहजा फरमाएं कि मैं उसे कैसे मुसलमान समझ सकता हूँ, मैं उसे कैसे मुसलमान समझ सकता हूँ, जो मोहम्मद के नवासे का आजादार नहीं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो मोहम्मद के नवासे का आजादार नहीं।
इसलिए लुत्फो अनायात के हकदार नहीं, हम किसी जिले इलाही के तरफदार नहीं। बहुत शुक्रिया नवाज़िश जी, जिंदा रहिए, सलामत रहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब शमा साहब, बहुत खूब। शुक्रिया जी नवाज़िश। चले एक अदबी लतीफा हो जाए। एक मर्तबा हबीब जालिब ने नासिर काज़मी से कहा कि जब नहीं, भी ऑडियो आपका कोई बंद हो गया है। अजरा वसीम साहबा का ऑडियो नहीं चल रहा है। मुझे आवाज आ रही चल रहा है। आ रही है आवाज, आ रही। जी जी आ रही है बाप जी, आ रही है। एक चले मैं आपको एक लतीफा सुनाने लगी थी कि एक मर्तबा हबीब जालिब ने नासिर काज़मी से कहा कि जब भी आपकी कोई गजल रसाले में छपती है तो मैं देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि काश ये गजल मेरे नाम से छपी होती। नासिर काज़मी साहब ने शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद हबीब जालिब साहब ने पूछा कि मेरी गजल देखकर आपका क्या रद्द अमल होता है? तो कहते हैं नासिर काज़मी ने कहा कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ये गजल मेरे नाम से नहीं छपी। क्या बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए जी, आतिशे इश्क ने जला डाला है, आतिशे इश्क ने जला डाला है, लाख दामन बचा के देखा है। इस खूबसूरत शेर की खालिक है डॉक्टर मुमताज मुनव्वर साहिबा। और क्या बात है, क्या बात लिखी है उन्होंने। डॉक्टर मुमताज मुनव्वर साहिबा जो हैं, उनकी तलीमी, समाजी और सकाफती खिदमात जो हैं वो ग्रां करते हैं। अदबी हलकों में मुमताज मुनव्वर साहिबा वाकई बहुत, और इनके शेरी मुनव्वर भी, मुमताज भी हैं और मुनव्वर भी हैं, बिला मुमताज भी है और मुनव्वर भी हैं। और शेरी मजमूए उनके अंदाज़े बयां को उत्तर प्रदेश में उर्दू एकेडमी इंडिया ने 2017 अवार्ड से भी नवाजा, और पहले भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हो चुकी हैं और हम इनको पसंद हैं और हम जितने प्यार से बुलाते हैं, और ये कभी भी इनकार नहीं करती। इनके पास वक्त जो है हो तो ये लाजमी हमारे प्रोग्राम में शरीक होती हैं, हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला करती है। जी डॉक्टर साहिबा, अता कीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हजरा वसीम साहिबा, आपकी मोहब्बतें हैं जो हमें खींच लाती हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छी महफिल सजाई आपने। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन वो डॉक्टर नहीं जो दवाइयाँ बांटती है, मैं खुशियाँ बांटती हूँ। जी बिल्कुल। मैंने उर्दू अदब में डॉक्टरेट की है। कमाल की बात की आपने। तो मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में पीएचडी की है, इसलिए लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं। और मुशायरों में पढ़ती रहती हूँ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन होने की वजह से दुनिया के हर कोने में पहुंच जाती हूँ। क्या कहेंगे, आपकी मोहब्बत है और हम आपको सुनना चाहते हैं, इसलिए लेकर आते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गजल से पहले एक कता पेश करती हूँ, मुलाहिजा करें सदर साहब की इजाजत से। जी इरशाद। जी, कहा है कि मोहब्बतों की फिजा से कलंदरों ने किया, मोहब्बतों की फिजा से कलंदरों ने किया, क्या कहेंगे, जरा प्यार का रोशन हम जैसे सुखनवरों ने किया, जरा प्यार का रोशन सुखनवरों ने किया। जमीन पर तो हुकूमत रही जरूर, मगर जमीन पर तो हुकूमत रही जरूर, मगर दिलों को फतेह यहाँ सिकंदरों ने किया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। दिलों को फतह कब सिकंदरों ने किया। वाह, बहुत शुक्रिया सबीन साहिबा। और गजल का मतलब पेश करती हूँ, मुलाहिजा करें। हसरतें हद से जब गुजर जाए, क्या कहने, हसरतें हद से जब गुजर जाए, क्या कहने,
तो मेरे दिल बता किधर जाए, तो मेरे दिल बता किधर जाए, हसरतें हद से जब गुजर जाए। शुक्रिया। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा करें। जी इरशाद पार हो के जो हमको जीना हो, ख्वार हो के जो हमको जीना हो, इससे बेहतर ये है कि मर जाए, इससे बेहतर ये है कि मर जाए, हसरतें हद से जब गुजर जाए। और ये शेर भी बतौर खास मुलाहिजा करें। खो गया है वजूद इंसान का, क्या वजूद इंसान का, ढूंढने अब उसे किधर जाए। बहुत प्यारा चरण, सुभान अल्लाह। हो गया है वजूद इंसान का, ढूंढने अब उसे किधर जाए, ढूंढने अब उसे किधर जाए, हसरतें हद से जब गुजर जाए, दर्द यादों का सह नहीं सकते, दर्द यादों का सह नहीं सकते, काश ऐसा हो सब बिसर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। दर्द यादों का सह नहीं सकते, काश ऐसा हो सब बिसर जाए, काश ऐसा हो सब बिसर जाए। और ये शेर देखिए हालत हाजरा के तनाजुर में। जोड़ रखना है आशियाने को, क्या जोड़ रखना है आने को, बिखर जाए। खूबसूरत बंदिश, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जोड़ रखना है आशियाने को, क्या के दिन के न फिर बिखर जाए, दिन के न फिर बिखर जाए, हसरतें हद से जब गुजर जाए। और ये भी शेर मुलाहिजा कर लें आखिरी। अब न रिश्ता रहा मगर फिर भी, क्या कहने, अपना रिश्ता रहा मगर फिर भी, अब न रिश्ता रहा मगर फिर भी, देखते हैं उन्हें
जिधर बहुत खूबसूरत, क्या क्या बात है जी, क्या बात है, कमाल किया आपने। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब न रिश्ता रहा मगर फिर भी क्या देखते हैं उन्हें जिधर जाए, क्या देखते हैं उन्हें जिधर जाए, हसरतें हद से जब गुजर जाए तो मेरे दिल बता किधर जाए। वाह, कलाम बहुत खूब मोहतरमा। और साहिबा बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सबीन साहिबा, बहुत नवाजिश आपकी, बहुत मजा आ गया। बहुत नवाजिश आपकी। जी, अजरा वसीम साहिबा कहाँ चली गई आप? अजरा साहिबा चाय बनाने गए। क्या चाय बनाने गई है? इमरान साहब कहाँ है भाई? माइक अजहर साहिबा, माइक आपका माइक म्यूट हुआ है। माइक जी, अब आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही, अब आ रही जी। चलें अब एक और अदबी लतीफा हो जाए। एक दिन एक दिन जबकि आफ्ताब गरूब हो रहा था तो सैयद सरदार मिर्जा गालिब से मिलने को आए। जब थोड़ी देर के बाद जी चलो जी, अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं हुई है सब लोगों की। एक अफसाना बाउनवान जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथी। सुभान अल्लाह, खूबसूरत इंतखाब, मतलब नाम ही बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा हिम्मत अफजाई का। मैं हाजिर कर रहा हूँ। अव्वल तो हम हातिम का ही नहीं थे और ना ही खारून के किसी खजाने का सुराख हाथ लगा था। फिर भी ना जाने क्यों यकायक हमारी दरिया दिली समंदर की लहरों की तरह सर पटक पटक कर साहिल पर फैल जाने पर मुझी। दरअसल हमारे घर जो खातून घरेलू सफाई वगैरह के लिए आती थी, नाम तो मालूम नहीं किया था, पर सब उन्हें खातून कहकर बुलाते थे। खातून को आज हमने बाजार से इफ्तार का सामान खरीदते देखा। इफ्तारी खरीदना कोई ऐसी बात भी नहीं कि हम अपने एहसासात कलमबंद करने पर मजबूर हो जाते। ताहम हमें ताज्जुब इस बात पर था कि एक तो गर्मी का मौसम, धूप इतनी तेज कि दरख्तों के पत्ते भी झुलस रहे थे, और ऐसे सख्त मौसम में वो खातून रोजेदार थी और 5-5 घरों में बर्तन मांजने से लेकर घर की सफाई सुथराई वगैरह भी किया करती थी। औरत के बारे में हमारी राय भी हर दिल अजीज शायर अहमद फराज से मुख्तलिफ नहीं थी।
हम सोच रहे थे कि ये खातून कौन सी मिट्टी से बनी है जो सन से नाजुक होने के बावजूद इतनी मेहनत मुशक्कत कर रही थी। इस एहसास में जब मजीद शिद्दत इख्तियार की तो हमसे रहा न गया और करीब जाकर बिलाखिर उनसे पूछ ही लिया कि कहीं वो किसी और के लिए तो इफ्तार का सामान नहीं खरीद रही हैं। उनका जवाब सुनकर हमें मजीद हैरत हुई कि इफ्तार का सामान वो अपने साथ अपने 2 बच्चों के लिए भी खरीद रही थी। वो दोनों भी पाबंदी से रोजे रखते हैं, जो अभी 4वीं और 5वीं जमात में पढ़ रहे हैं। या हैरत, दिल ही दिल में हम उस खातून के मुतक़िद हो गए। बाद में जब हमने बेगम से इस बात का तज़किरा किया तो हस्ब मामूल उन्होंने हमारी मालूमात में इतना कुछ इजाफा कर दिया कि हम खातून के बारे में सब कुछ जान गए। बेगम ने बताया कि खातून के मियाँ बैरून मुल्क नौकरी की तलाश में गए थे, मगर तनख्वाह घर भेजना तो दूर अपनी खैर खबर भी नहीं भिजवाते। खातून घरों में कामकाज करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालने पर मजबूर थी। सबसे ज्यादा दुख हमें इस बात का हुआ कि 5 में से 2 घर गैर मुस्लिमों के भी थे। जाहिर है ये कोई ऐसी बात शायद नहीं थी कि हमें इतना दुख होता, खासतौर पर आज के मॉडर्न दौर में जहां मुस्लिम लड़कियां तालीम हासिल करने के बाद सेल्स गर्ल्स या कॉल सेंटरों में नाम निहाद मजबूरी के तहत या फैशन के तौर पर ही सही काम करना उन्हें बुरा नहीं समझ रही थी। हमें तो दुख इस बात पर हुआ कि खुद खातून भी उन घरों में काम करना पसंद नहीं करती थी। ये उनकी हमीयत के मुनाफी था, मगर ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि बच्चों की तालीम वगैरह का खर्चा उन 2 घरों से मिलने वाली उजरत से ही पूरा होता था, वरना घर के किराए, खाने पीने और तालीम के अखराजात सिर्फ 3 घरों की आमदनी से तो पूरे होने से रहे। खातून की मजबूरी और उनके ख्यालात जानकर हमारे दिल में उनका एहतराम मजीद बढ़ गया। आज वो खातून हमें दुनिया की सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता, बावकार, पाकीज़ा और बाहया हुनरमंद खातून लगी। तभी हमने एक फैसला किया और मुतमईन होकर सो गए। हम अगली सुबह उठे और सीधा खातून के बच्चों के स्कूल जा पहुंचे। फिर प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करके खातून के बच्चों के तालीम के अखराजात अदा कर दिए। हमें बताया गया था कि अगर सिर्फ दिल से किसी मजबूर की मदद का इरादा कर लिया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस काम को आसान फरमा देता है। हुआ यूं कि दोनों बच्चों की यकमुश्त 10वीं जमात तक की फीस जमा कराने पर हमें 50% की छूट मिल गई। थोड़ी थोड़ी फीस जमा कराने में सबसे ज्यादा हमें अपने ही नफ्स से खतरा था। क्या पता कल कला को कहीं वो इस नेक इरादे पर हावी ना हो जाए। हमने मौका गनीमत जाना और प्रिंसिपल साहब से राजदारी बरतने का वादा लेकर फीस जमा करवा दी। फिर हमें ऐसा लगा जैसे दिल चिल्ला चिल्ला कर वाहवाह के साथ कह रहा हो कि जनाब आपने तो बड़ी शान से हाकिम ताई की खबर पर लात मार दी। अब हम इसके बाद पैदा होने वाले सबसे बड़े मसले को हल करने की सोचने लगे, क्योंकि ईद का मौका था। अभी घर की शॉपिंग और बेगम के कपड़े और सेटिंग और नई क्राकरी वगैरह सब कुछ अभी बाकी था। लेकिन रब्बे करीम पर भरोसा करके जब हम घर पहुंचे तो अल्लाह की मदद हमसे पहले पहुंच चुकी थी। हम बड़े हैरान हुए क्योंकि बेगम ने कल रात टीवी पर आए मौलाना के दर्स व उन्वान इसराफ से मुतासिर होकर इस साल ईद बड़ी सादगी से मनाने का ऐलान कर दिया। लोहा गर्म देखकर हमने एक और हथौड़ा मारा और बेगम से कहा कि इस साल ज़कात की रकम पेशावर मंगतों को देने के बजाय खातून को सिलाई कढ़ाई की मशीन दिला देते हैं, जिससे कम से कम खानदान भर का भला हो जाएगा। वो इज्जत, चादर और चारदीवारी में रहकर अपनी जिंदगी आइन इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजार लेंगी और अगले साल तक शायद साहेब निसाब होने के बाइस गरीब व नादिर तुलबा के लिए अंबिया की विरासत दौलत इल्म के हुसूल का जरिया बन जाए। इल्म के मुतलाशी मिल्लत वारिसान रसूल के खिदमतगारों में एक और का इजाफा हो जाए। हम पर हैरत और इस्तेजाब का एक और हमला उस वक्त हुआ जब हमारी बेगम हमारी तकरीर मौलाना के वाइस से भी ज्यादा असर कर गई, और क्यों ना करती, हमारा जज्बा ही सच्चा था। हम बहुत खुश हुए और बेसाख्ता हमारे लबों पर अल्लामा का ये शेर आ गया कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथी। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। बहुत 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 खूबसूरत, बहुत ही बहुत दिलगुदाज और एक पैगाम सबके लिए। बहुत अच्छा।
ऐसे ही होना चाहिए। और अतर भाई बहुत ही कसरे नफसी से काम लेते हैं, हालांकि ये बहुत अच्छा लिखते हैं, और इस्लाही इनकी मैंने अक्सर जो है वो अखबारात में तहरीरें पढ़ी हैं और वो इस्लाही भी होती हैं। जी खूबसूरत पैगाम भी ये देते हैं अपनी तहरीरों के जरिए से हमें। तो शुक्रिया आपका, बहुत हिम्मत अफजाई फरमाई। दरअसल मुझे ऑनलाइन इसका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, माजरत चाहता हूँ अगर पढ़ने में कहीं कोई कोताही या गलती नहीं कुछ भी नहीं, आपने बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत कॉन्फिडेंस से पढ़ा, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रोशनी सुबह की लिखूं, शफक शाम लिखूं, रोशनी सुबह की लिखूं, शफक शाम लिखूं, सफाई दिल पर कोई किस्सा एक गुलफाम लिखूं। क्या कहने, जिंदगी तुझसे फक्त इश्क किया है मैंने, जिंदगी तुझसे फक्त इश्क किया है मैंने, मिले फुर्सत तो कभी इश्क का अंजाम लिखूं। क्या इन खूबसूरत अशार के खालिक है नजीब अहमद नजीब साहब। इनका ताल्लुक हैदराबाद से है और हमदिया और नातिया संजीदा और मज़ाहिया तीनों रंगों में मशक़ सुखन करते हैं। बुनियादी तौर पर सहाफ़त से वाबस्ता हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हाल ही में एक तालबा ने नजीब अहमद नजीब साहब के मिज़ाह के कलाम को जमा किया और एमफिल का मकाला लिखा। मुख्तलिफ अदबी नजीब भाई शुरू कीजिए, शायद डिस्कनेक्ट हो गया है तो अस्सलाम वालेकुम। हम आपको सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छी मेरी आवाज आ रही है नजीब साहब, बिल्कुल आवाज आपकी आ रही है। मैं दबिस्तान शेर व नसर और बज़्म ज़राफ़त के अरबाब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये खूबसूरत मौका मुझे फराहम किया कि इतनी खूबसूरत शख्सियत के साथ मेरी मुलाकात हुई और उनके साथ मैं जुड़ा बैठा हूँ। बेहद शुक्रिया। और जब बात हो ज़राफ़त की और मज़ाहिया कलाम न हो, ये भी नामुनासिब है, तो मैंने ये तय किया कि आज की महफिल में अपने कुछ मज़ाहिया अशार सुनाने की सादत हासिल करूँगा। और उसके बाद मेरी एक गजल के बाद मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की तहरीर के चंद जो है चुनिंदा पैराग्राफ्स मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मिजाह की बात हो और मुश्ताक यूसुफी का जिक्र न हो, यह बिल्कुल नामुमकिन बात है। पहले गजल, उसके बाद यूसुफी। शेर हाजिर करता हूँ मसनद सदारत की इजाजत से। इरशाद। मैंने जो रदीफ बांधी है वो जरा नई लगेगी आप हजरात को, इंग्लिश में इसकी रदीफ है, इंग्लिश में। शेर अर्ज करता हूँ कि इधर इकरार इंग्लिश में, उधर इनकार इंग्लिश में। क्या कहना, इधर इनकार इंग्लिश में, इधर इकरार इंग्लिश में, उधर इनकार इंग्लिश में, कि चालू हो गया है अपना कारोबार इंग्लिश में। क्या कहने चालू हो गया है अपना कारोबार इंग्लिश में। शेर इस तरह कहा है कि किए जाते हैं हम अज़कार और अस्तग़फ़ार इंग्लिश में। आरिफ भाई को देख रहा हूँ, एक जमाने के बाद आरिफ भाई को देख रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जी भाई कहिए। किए जाते हैं हम अज़कार और अस्तग़फ़ार इंग्लिश में। पुकारा रब को हमने आज या गफ़ार इंग्लिश में।
किए जाते हैं हम अज़कार और अस्तग़फ़ार इंग्लिश में, या गफ़ार इंग्लिश में। शेर इस तरह कहा है कि हमारी बात में लफ्जों की है भरमार इंग्लिश में। वाह हमारी बात में लफ्जों की है भरमार इंग्लिश में, बड़ा छोटा करे है हमसे इस्तफसार इंग्लिश में। बड़ा छोटा करे है हमसे इस्तफसार इंग्लिश में। अगरचे नाश्ते में नॉन वेज के हम नहीं कायल। नाश्ते में अगरचे नाश्ते में नॉन वेज के हम नहीं कायल। नहीं, आवाज बहुत आ रही है, आवाज गूंज रही है। नहीं अगरचे नाश्ते में नॉन वेज के हम नहीं कायल, था उन्वा मा हज़र करना पड़ा स्वीकार। इंग्लिश। वाह 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 वाह, नजीब भाई कमाल करते हैं। कमाल कर दिया आपने। जिधर देखो उधर है हाय हेलो और यू। जिधर देखो उधर है हाय हेलो और हाउ आर यू। कौले हो गए हैं लोग सब बेकार इंग्लिश में। वाह 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 नजीब भाई, वाह नजीब भाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। एक शेर है, सुना है, नहीं ये शेर छोड़ देता हूँ क्योंकि अगले मुशायरे में जो है शिरकत जो है खतरे में पड़ जाएगी। तो मैं मुश्ताक अहमद यूसुफी के जो है पैराग्राफ्स पे आता हूँ। जनाब तहरीक निफाज उर्दू पाकिस्तान आपको सलाम पेश करती है ये लिखने पर। जी यकीनन यकीनन। अच्छा नजीब भाई, नजीब भाई मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। परवीन शाकिर के शेर पर मुश्ताक अहमद यूसुफी ने क्या लिखा मुलाजा फरमाया। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। इससे यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। एक यही बात है अच्छी मेरे हर बस जाएगी। यही बात है जी। हमारी नेकबख्त बेगम परवीन शाकिर की तरह ये दावा भी नहीं कर सकती वो बस साहिबो हमारे केस में तो लौटने का तो कभी सवाल ही पैदा नहीं हुआ, इसलिए कि हम घर से बाहर निकलने के लिए कभी ढंग का ठिकाना दरियाफ्त ही नहीं कर पाए। हमें हैरत है कि परवीन शाकिर जैसी हसास और निडर खातून ने यह बात कैसे कही। इसलिए कि उस हरजाई का लौट के घर आना घरवाली की अज़दवाजी कशिश का करिश्मा या हरजाई की शोहराना वफादारी की वसात का मुबद्दा सबूत नहीं बल्कि उसकी रिहायशी मजबूरी है। क्या बात। सारा दिन एक दूसरे से लड़ाई के बाद रात को एक ही मोर्चे में आराम करने वाले बाउसूल जंगजुओं को उर्दू जबान में मियाँ बीवी कहते हैं। हिटलर ने भी यही बात की थी कि एक बिस्तर एक ऐसा मैदान जंग है जिसमें मियाँ बीवी एक साथ, दो दुश्मन एक साथ सोते हैं। अच्छा लेकिन कुछ सुने, लेकिन कुछ लोगों के घरेलू हालात मुख्तलिफ भी होते हैं। पता नहीं, हमने तो नहीं देखा। उर्दू जबान पर से मेरा यकीन उसी दिन उठ गया जब मुझे पता चला कि उर्दू में सास को खुशदामन कहते हैं। बायोलॉजी कभी मेरा मजमून नहीं रहा। ये इक़्तिबास है केस हिस्ट्री का जो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने एक मेडिकल कॉलेज में 200-250 सर्जन्स के सामने बैठ के मजमून पढ़ा था। बायोलॉजी कभी मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा। मेरा ताल्लुक तो उस भोली भाली नस्ल से है
जो खुलूस दिल से समझती है कि बच्चे बुजुर्गों की दुआ से पैदा होते हैं। क्या बात है, ये उम्दा, नस्ल उम्दा अपने इंतखाब। करतूत को बुजुर्गों ये नस्ल अपने करतूतों को बुजुर्गों की करामत समझती है और कसरत आबादी से पैदा शुदा मसाइल को नऊजुबिल्लाह फज़ल इलाही। आज के प्रोग्राम के इख्तिताम में ये नहीं लिखा हुआ था कि बेगम को साथ बिठा के प्रोग्राम नहीं रहा। अच्छा, शिराजी भाई हैं क्या? शिराजी भाई, हुसैन शिराजी हैं क्या? जी बिल्कुल हाजिर हूँ जनाब। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं इधर साथियों को 1 मिनट के लिए बता दूं, लाहौर से हमारे जो साथी हैं शिराजी साहब, ये उर्दू अदब के इस वक्त के आसमान के, इन्हें अगर मैं कहूँ कि 3-4 दर्शनदा सितारे हैं, जैसे कासमी साहब हैं, जैसे, बल्कि मैं बस 2 ही का नाम ले सकता हूँ, सिर्फ फौरी तौर पर तो 3-4 नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है और हमारी खुशकिस्मती है कि आज बज़्म ज़राफ़त के इस प्रोग्राम में मौजूद है। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और यहाँ पे वो अपना जो फनपारा पेश करेंगे वो आप लोग सुनेंगे। मैं आप सब लोगों को यहाँ इनकी तफसीलात तो नहीं दे सकता, यकीनन उन्होंने दे दी होंगी हमारे मुंतज़िम साहब ने, मियाँ हमारे जो इमरान भाई हैं, लेकिन मैं एक अलग से प्रोग्राम इंशाल्लाह करूँगा और ख़ास तौर पे इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि नजीब भाई भी शिराजी साहब के बारे में राय दें। हम एक शाम शिराजी इंशाल्लाह जल्द मनाएंगे, तो उसका मैं यहाँ इत्तला दे रहा हूँ। आगे प्रोग्राम कंटिन्यू कीजिए, बिस्मिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया जी। तो शिराजी एक और इख्तिबास हाजिर करता हूँ। औरतें, यूसी साहब कहते हैं कि औरतें दवाओं से परहेज करती हैं, औरतें दवाओं से परहेज करती हैं, वो सिर्फ वर्जिश से खुद को स्लिम रख सकती हैं। स्लिमिंग के मौजू पर औरतों की रहबरी के लिए बेशुमार तस्वीर किताबें मिलती हैं, जिनके मज़ामीन औरतें पढ़ती हैं और तस्वीरों से मर्द जी बहलाते हैं। उनमें यह बताया जाता है कि मर्द काठ के पुतले की मानिंद है, लेकिन औरत मोम की तरह नर्म। चुनांचे मर्द को हर साके में डाल सकती है, फिर उसके गोश्त में कुदरत ने वो लोच रखा है कि सिमटे तो दिले आशिक पहले तो जमाना है। वजन हुस्न का दुश्मन है, इसलिए हर समझदार औरत ये ख्वाहिश होती है कि अपनी चर्बी की दबी तहों के खौल को सांप की केचली की तरह उतार कर अपनी अपनी सहेलियों को पहनना दे। अक़द नागहानी के बाद जिससे किसी को मफर नहीं, हर लड़की का बेहतर वक्त अपने शौहर और वजन से जंग करने में गुजरना। बहुत खूबसूरत। मैं बेगम के साथ बैठ के ये प्रोग्राम देख रहा था, जैसे ये प्रोग्राम ये शुरू हुआ सिलसिला, तो फिर मैंने ये हैंड फ्री लगा ली। बहुत ये सबकी शाबाश बुलाएंगे। मुश्ताक अहमद जुल्फी का मुश्ताक अहमद जुल्फी कहते हैं कि अगर औरत खामोश बैठी है तो एहतियातन उसकी नब्ज चेक कर लीजिए। लिहाजा मैंने कहा मैं बोल क्या बता दूं कि औरत अगर खामोश बैठी है तो एहतियातन उसकी नब्ज चेक कर लीजिए। लुत्फ तो ये है कि बता तो रहा है, ये भी देखें। एक जनानी मजलिस में वो फिरोज खान का डायलॉग है, फिरोज खान का एक डायलॉग है एक फिल्म में, तो जिसमें वो फिरोज खान ने कहा कि अभी हम जिंदा हैं। साहिबा ने बताया मौजूद है। मैं एक इख्तिबास पेश करता हूँ। मुश्ताक अहमद यूसी साहब ने 200-250 खवातीन की मजलिस में 200-250 खवातीन की मजलिस में मजमून सुना रहे थे। उसमें आया कहा कि अगर सलाद खाने से दुबला होना होता तो एक भैंस भी मोटी न होती। बिल्कुल सही। कुछ भी खाने से मोटे नहीं होते, अपना मुंह बंद करके बढ़िया कर बीमार में स्लिम रहते हैं। कुर्सी के मुख्तलिफ मौका जिक्र किया था।
इक़्तिबास पेश करते सरे फहरिस्त उन मिजाज कुर्सी करने वालों के नाम ये है जो दवा तजवीज़। तो मतलब ये नहीं कि वो मुनकसिरुल मिजाज है, दरअसल उनका ताल्लुक। बहुत तेज आवाज कहीं से आ रही है, किसी के माइक से, बहुत किसी के घर में आवाज आ रही है, बहुत तेज है। सरे फहरिस्त उन मिजाज कुर्सी करने वालों के नाम ये है जो मर्ज तशखीस करते हैं न दवा तजवीज़ करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो मुनकसिरुल मिजाज हैं। दरअसल उनका ताल्लुक उस मदरसे फिक्र से है जिनके नज़दीक परहेज इलाज से बेहतर है, जो उस शिकम आज़ाद अक़ीदे के मुबल्लिग़ व मुईद हैं कि खाना जितना फीका सीधा होगा सेहत के लिए उतना ही मुफीद होगा। यहाँ ये बताना बेमहल न होगा कि हमारे मुल्क में दवाओं के खवास दरियाफ्त करने का भी यही मेयार है। जिस तरह बाज़ खुश एतक़ाद लोगों का अभी तक ये ख्याल है कि हर बदसूरत औरत नेक चलन होती है, इसी तरह तिब्बे कदीम में हर कड़वी चीज को मुसफ़ा खून तस्वुर किया जाने लगा है। चुनाचे हमारे यहाँ अंग्रेजी खाने और कड़वे कदहे इसी उम्मीद में नोशेजान किए जाते हैं। बेहद शुक्रिया, मैं अपनी जगह लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, तमाम का शुक्रिया। आरिफ भाई जी का नजीब चेहरा मेरे सामने है स्क्रीन पर। जी आरिफ भाई, नजीब भाई बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपको अलग से मदू करेंगे मैं इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्कों के दरमियान के जो है रुकावटें, पर्दे अचानक खत्म हो और हम आपस में मिलना जुलना शुरू करते हैं। वेब कैमरा इंशाअल्लाह, अल्लाह करे इंशाअल्लाह, आमीन। हज़रत वसीम साहब के हवाले माइक बंद कर रहा हूँ। जी इमरान भाई। जी नेक्स्ट कौन है? अजरा साहब आपका माइक म्यूट है। इमरान फिर आप बुला लें। जी अब मैं दावत देने जा रही हूँ जनाब शिराजी साहब को, लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं और मुमताज़ मज़ार-निगार हैं, ब्यूरोक्रेट हैं और अदबी हलकों का बहुत ही मारूफ नाम है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जी शिराजी साहब। ये अदरा साहब मैं थोड़ी सी इनके बारे में दो बातें मैं भी जी जरूर। जी शिराजी साहब जो है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अहदे हाजिर के निहायत कदावर मिजाज निगार हैं। कराची वाले इत्तेफाक से उनसे वाकिफ नहीं इतने जितना कि उन्हें होना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो दो किताबें मंजर आम पे अब तक आ चुकी हैं, बाबू नगर और दावत शिराज, उन्होंने उर्दू मिजाज के अंदर एक नहायत, मैं कह सकता हूँ कि एक नहायत नई सिंफ जो है वो संजीदा मिजाज उसको जन्म दिया है और उनका ये मिजाज पढ़ने के काबिल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा याद रखने के काबिल है, क्योंकि इसमें उन्होंने फिक्र की नई जहतें खोली हैं। मिजाज के वो शनावर ही नहीं हैं, मैं कहता हूँ मिजाज के वो अबकरी हैं। ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने नाम कमाया और एक हवाले से हमारे मोहसिनों में शामिल हैं पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने खुद बताया उनके बारे में कि जब वो एटम बम बना रहे थे तो उसके लिए जो आलात मंगवाए गए थे उसके लिए खुसूसी इंतजाम करने वाले इंतजामकार सरकार की तरफ से जो साहब थे, उनका नाम था हुसैन शिराजी। तो मैं उनको सलाम तहसीन पेश करता हूँ। तो जी अब कहिए शिराजी साहब को सुनिए, हम सब सुनते हैं। जी सैयद आरिफ मुस्तफ़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात तो नहीं, लेकिन चले आज ये गायबाना मुलाकात हो गई। बड़ी नवाजिश कि आपने मुझे आज यहाँ मद्दू किया। जब मैं सरकारी मुलाजमत करता था तो यहाँ भी उर्दू के बारे में बात हुई। मैंने 1984 में अपनी ज़िंदगी का 1 साल लगा के कस्टम एक्ट का उर्दू में तर्जुमा किया था। वो तर्जुमा उनकी मंजूरी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने शाया किया और उस पे मुझे उस ज़माने में 1 साल की तनख्वाह इनाम में मिली थी। फिर मुक़्तदर जुबान ने मेरी किताब कस्टम इस्तिलाहात जो मैंने उसका किया था वो भी उन्होंने 1988 में शाया की थी। वाह डॉक्टर कदीर खान साहब का आपने
तज़किरा किया, उनसे बड़ी मोहब्बत रही। डॉक्टर साहब ने पिछले साल जुलाई में मेरे बारे में, डॉक्टर साहब ने मेरे साथ कॉलम लिखी और जी जी जुलाई में मेरे बारे में कॉलम लिखा था, और उसमें उन्होंने लिखा था मैं शिराजी साहब 76 से जानता हूँ। तो जी ये हिसाब लगा कि उस वक्त से फिर मैं डॉक्टर साहब का एक हॉस्पिटल का ट्रस्ट था, उन्होंने मुझे अपना उसका ट्रस्टी रखा हुआ था। अच्छा तंजो माशाल्लाह। तो ये कुछ मुश्किल मज़ामीन तो नहीं, लेकिन ये मज़ामीन से कुछ इक़्तिबासात जो है वो आपके होने ये जी प्लीज। ये किसी के घर से ना पीछे से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है। किसी के घर से बहुत ज्यादा पीछे से आवाज आ रही है औरतों के बोलने की, खवातीन के। चलिए मेरे ख्याल में आवाज खत्म हो गई। मजमून का ये मज़ामीन है, उनके इक़्तिबासात जो है वो पेश खिदमत है। मजमून है लवाहिक, ये बाबू नगर किताब में से। बाज शौकीन मिजाज बाबू कटी पतंग बन जाते हैं और हवा में इधर उधर झूलने के बाद किसी होटल, बाग, कोठे या नाले में गिरे पाए जाते हैं। एक बाबू ने अपने साथी को किसी ऐसे ही मुकाम पर किसी खातून के साथ देखा तो अगले दिन उनके दरमियान बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। पहला, यार वो साथ कौन थी? दूसरा, अरे भाई तुम्हारी भाभी थी। पहला, बकवास मत करो, बेशक मैंने फासले से देखा था, लेकिन भाभीयों की इतनी पतली कमर नहीं होती। क्या कहने। इक़्तिबास खत्म हुआ। फिर ये दूसरा मजमून है आलमी बाबू, उसका इक़्तिबास पेश खिदमत है। स्विट्जरलैंड में हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा सरमायाकारी की नाम नहाद बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई का आगाज हुआ तो पता चला कि कॉन्फ्रेंस के शुराका सिर्फ पाकिस्तानी वफद पर मुश्तमिल है। मसला हल करने के लिए एक पाकिस्तानी से आना वफद के लिए हासिल की गई किराए की कारों के टाइयों वाले ड्राइवरों को पकड़ लाया और उनको अगली नशिस्तों पर बिठाकर टीवी और अखबारी तस्वीरों का मुनासिब इंतजाम किया गया। से आना आदमी बाद में पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर आज़म भी रहा है। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। एक और इक़्तिबास, ये सरकारी मुलाज़मीन की ये सिंफ अब मादूम होती जा रही है। इस तरह के एक नायब तहसीलदार डिप्टी कमिश्नर बन गए। किसी ने उनकी इस शानदार तरक्की पर उन्हें मुबारकबाद दी तो जवाब मिला कि साईं हम ऊपर नहीं गए, ये ओहदा ही आहिस्ता आहिस्ता गिरते गिरते हम तक आ गया है। करप्शन मजमून, उसका एक इक़्तिबास। बाज़ ज़मीर बुनियादी तौर पर कमज़ोर तख्लीक किए गए हैं। ऐसे ही एक अहलकार ने मुलाकाती को कहा कि खुदा का खौफ करो, मैं अभी बाजमात नमाज पढ़ के आया हूँ, मुझे करेंसी पान खराब होता है, कायदे-ए-आज़म की हुकूमत को चाहिए गलत काम करने के लिए अलग करेंसी नोट छापे जिस पर उनकी तस्वीर ना हो। और रियासत का मनसब अवाम की माँ की तरह होता है, और ये कैसी माँ है जो एक बेटे को खाने के लिए केक देती है लेकिन बाकी 5 बच्चों खाना चूल्हे पर हुई उस देगची में तैयार होने वाले पकवान का इंतजार करने को कहती है जिसमें पत्थर पानी में उबल रहे हैं। ये बात मुआशरे के तमाम तबकात के अपने मफाद में है कि ये उबलते हुए पत्थर केक खाने वालों पर बरसना शुरू न कर दे। तारीख का बेरहम सबक ये है कि अगर आप मजलूम के पास नहीं जाएंगे तो एक दिन मजलूम आपके पास आएंगे, और ये कोई दिल आवेज मंजर नहीं होगा कि ये रोज़े क़यामत है।
क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात, बहुत ही जी जी आप पेश कीजिएगा। जी जी, एक और छोटा सा इक़्तिबास। 1980 में हमने अपनी किताबें वफाकी वजीर कानून को दिखाई तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने उसी वक्त सेक्रेटरी कानून को बुलाकर इन किताबों की कंप्यूटर के लिए सॉफ्ट कॉपी बनाने की हदायत दी और हमारे अदारे के सरबराह को हमारी किताबों की तारीफ व तौसीफ का खत भी लिखा। इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में तहकीक के ज़वाल का तज़किरा आ गया तो सेक्रेटरी ने तबसरा किया कि कबहार जो बर्तन बनाता है वो अब शहरों में मतरूक हो गए हैं क्योंकि उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता। यही हाल हमारे यहाँ रिसर्च का है। और एक आखिरी इक़्तिबास ये तेज तर्रार बाबुओं के बारे में है। ऐसे ही एक जीरक बाबू से उनके साथी ने कहा, काश मैं तुमसे आधा चालबाज होता। तो दूसरे साथी ने जवाब दिया, चेले गुरु से मस्खरी मत करो, अपनी खाल में रहो, कभी आंधियां भी मुट्ठी में कैद हुई हैं। याद रखना, मेंढक ने हाथी बनने के शौक में फूलना शुरू किया था तो वो फट गया था। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। लेकिन तशनगी रही साहब, इंशाल्लाह एक शाम में शिराजी होगी तो उसमें तफसील। हजरत साहब आपका माइक म्यूट है। जी 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 शुरू कीजिए। आपने मुझसे कुछ कहा, मुझे आवाज नहीं आई इमरान साहब। नहीं हजरत साहिबा आपका माइक कनेक्ट हो गया, आप बोलिए। जी जी शहनाज रिजवी साहब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। नहीं वो नहीं पहुंच पाई। ठीक तो सैयद आरिफ मुस्तफा साहब को कॉल की। सैयद आरिफ मुस्तफा साहब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। नहीं वो उनका माइक म्यूट है। आप सबीन साहब साहिबा हैं। नहीं माइक म्यूट है मेरा। नहीं आपकी आवाज आ रही है आरिफ मुस्तफा साहब। जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज आ रही है जी जी सुन सकते हैं आपको। गजल के मिजाज जैसी जात, गजल के मिजाज जैसी जात, गजल तराश के लफ्जों को जो अमर कर दे, वो जिसका हुस्न नुमाया है उसकी शायरी में, वो जिसका हुस्न नुमाया है उसकी शायरी में, वो जिसके खुल्क की तस्वीर उसके मिसरे हैं, जो हर्फ हर्फ में सदियों समेत जिंदा है, वो जिसके लफ्ज शौरे प्यंबरी ठहरे, जो खामोशी से तकल्लुम को मात देती है, वो जिसकी जात मुजस्सम है नज़म राशिद की, जो बात को मिसरा मिजाज करते हुए, जो बात को मिसरा मिजाज करते हुए समातों को सुखन फहम करती रहती है, वो जिसके वास्ते उन शायरी का बाइस था, वाह वाह वाह, गजाल की सूरत खिराम करती हुई नजर के ज़ौक़ पे जब हाशिया बनाती है, सबीन सैफ सलीके से याद आती है। शायर के इस ख्याल की तायद हम सब करेंगे कि सबीन सैफ सलीके से याद आती है। क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सैफ साहिबा अदबी हलकों का मारूफ नाम, एक और जन मुझे तन्हा ही रहने दो,
तमाशा मेरी वहशत का इनकी शेरी तासानीफ है, बारगाह अदब की चेयरपर्सन है, कराची आर्ट्स काउंसिल लाइब्रेरी की कोऑर्डिनेटर हैं, अदब नवाज शख्सियत भी हैं और दिल नवाज भी। मोहतरमा सबीन सैफ से मुल्तमिस हूँ कि वो हमें अपना कलाम भी सुनाएं और वो सदारत की मसनद पर तशरीफ फरमा है तो अपने ख्यालात का इजहार भी फरमाएं। जी, आपके तमाम अल्फाज की हर बार तायद करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? आ रही है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अपने परवरदिगार का, जिसका करम मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही खास है, उसका शुक्र अदा करूंगी। इसके बाद दबिस्तानी शेर व नसर और बज़्म ज़राफ़त के ज़ेर एहतमाम जो ये शाम सुखन सजाई गई, मैं जिन लोगों ने इस पे काविशें की, मोहम्मद इमरान साहब, मुस्तफ़ा साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की कि उन्होंने मुझे सदारत की कुर्सी दी। और इसके बाद मैं अज़रा साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने आज कम से कम मेरा 2 किलो वजन बढ़ा दिया है इतनी तारीफ करके। ये बढ़ाना मुस्बत है। जी जी। और जो आज जिन जिन शोरा ने कलाम और नसर, क्योंकि ये शायर भी और नसर निगार भी थे यहाँ पे, बहुत खूबसूरत मरसा कलाम पेश किया। और जो जिन्होंने भी नसर में हमसे गुफ्तगू की, ये अफसाना एक छोटा सा सुनाया, इख्तिबास, और जितने भी मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब हम कुछ सुन रहे होते हैं, एक मिसाल बात कि हमने 1 घंटा भी किसी से कोई गुफ्तगू सुनी या किसी से बात की, हमने टीवी देखा, अगर हम उसमें से एक खूबसूरत बात भी समझ के सीख के उठते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा वो घंटा जाया नहीं हुआ, हमने उसमें पूरे दिन की हमें ग़िज़ा मिल जाती है। हम अदीबों को या हसास लोगों को एक ग़िज़ा मिल जाती है। यहाँ पे 1-2 बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि जो हमारे नए आने वाले हैं, कि जैसे कि आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत पगड़ी आपके ऊपर लग रही है। आपने कहा बहुत ही, जब बच्चा पैदा होता है, ये उन नामूज़ लिखने वालों के लिए जो अभी हमारे यहाँ नए आए हैं, उनके लिए एक छोटी सी बात ये करूंगी कि बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उठते ही वो भागना नहीं शुरू कर देता। वो पहले बैठना सीखता है, इसके बाद खड़ा होता है, गिरता है बहुत दफा, और गिर के संभलना सीखता है, फिर पकड़ के चलना सीखता है। और वो हाथ कभी नहीं भूलता, चाहे वो बहुत छोटा हो। जो उसको पकड़ के चलना सिखाते हैं, इसके बाद वो चलना सीखता है, फिर दौड़ना भी सीख लेता है। शायरी भी इसी तरह है कि आप बिल्कुल ना घबराएं कि अगर आप कहीं आप गलतियां कर रहे हैं, या आप बस ख्याल अच्छा होना चाहिए। यकीनन बहुत अच्छा हम लिखने लगते हैं अगर हमें थोड़ी सी कोई एक हाथ भी ऐसा मिल जाए जो एक माँ की तरह चलना सिखाता है। तो मैं आप सबको जो माशाल्लाह इस वक्त यहाँ हैं और अपने अपने ओहदों पर काफी दस्तरस रखते हैं, अपनी अपने कलाम पर, कि हमें नए आने वालों के लिए, मेरी बारगाह अदब का मकसद भी ये है कि नए आने वालों को मैं कम से कम एक सीढ़ी जरूर फराहम करती हूँ कि उनको पता चले, उनको एतबार मिले कि हम शायर हैं, बाकी के आगे की बातें होती हैं। और जनाब, मैंने दुनिया में सिर्फ ये सीखा है कि आप किसी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाओ तो यकीनन आप भी उसके साथ आगे बढ़ते जाते हैं। इंडिया से बहुत मुझे आते हैं इनविटेशन, बल्कि आज भी आया है कि 28 मई को एक प्रोग्राम है, अगर मैं इंडिया आई तो आप सब साहिबान से मुलाकात होगी, क्योंकि मेरी घर की जिम्मेदारियां इतनी हैं कि मैं नहीं कहीं बाहर जा पाती। मैं 100 में से 1 मुशायरा पढ़ती हूँ और इसके बाद 9 बजे अपने घर वापस आती हूँ, क्योंकि मेरे घर का माहौल भी ऐसा नहीं है और मैं खुद भी ये बात बेहतर नहीं समझती कि औरतें 1 बजे 2 बजे घर वापस आएं।
मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, और मैंने इस पे बाकायदा मुहिम चलाई हुई है कि जहाँ पे खवातीन हो तो मुशायरे 9 बजे के बाद बंद कर देने, खत्म 9 बजे तक खत्म कर देने चाहिए। और मैं एक बार फिर आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने मुझे इस मकाम पे कबूल किया। और इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अच्छे लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, इतने अच्छे लोगों से मिलवाया। और आपकी, अगर आप लोगों की इजाजत हो, आप सब मेरे लिए अहम हैं, बड़े हैं, तो अपनी गजल आपके सामने पेश करूं। जी जरूर 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 अता फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बल्कि शुरू करूंगी अपने 2 अशार से जो मेरी पहचान है। इंडिया में जब भी कोई ख़वातीन का आलमी दिन होता है या किसी औरत को मदू किया जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। बल्कि कलीम कैसर साहब भी जो वहाँ के बहुत अच्छे निज़ामतकार हैं, मेरा हर मुशायरे में जरूर मेरे अशार पढ़ते हैं कि दिल तो क्या जान हार सकती हूँ। वाह वाह जी वाह। दिल तो क्या जान हार सकती दिल तो क्या जान हार सकती हूँ, हर खुशी तुझ पे वार सकती हूँ। वार सकती हूँ। वाह जी दिल तो क्या हर खुशी तुम पे वार सकती, हर खुशी तुझ पे वार सकती हूँ। हर और खुशी पहले डरती थी पतंगे से। क्या कहने, पहले डरती थी पतंगे से, एक पतंगे से डरती थी पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। सांप मार सकती हूँ, माँ हूँ अब सांप क्या कहने। माँ में ताकत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। सांप मार सकती, मोहब्बत ताकतें रखती है, माँ में मोहब्बत होती है। औरतों को अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। और एक बिल्कुल नई गजल आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं उन शायरात में से हूँ, मैंने 15 साल में ये माहौल, ये सब कुछ चेंज किया है कि आप यकीनन अपनी 40 साल पुरानी गजल सुनाए लेकिन उसके साथ कोई नई चीज भी सुनाए, क्योंकि 40 साल तक हम एक ही गजलें सुन के परेशान हो जाते हैं। तो मतलब हाजिर है कि दर्द सहना जो लगातार नहीं सीखोगे, दर्द सहना जो लगातार नहीं सीखोगे, कैसे करते हैं कभी प्यार नहीं सीखोगे, क्या कहने। दर्द सहना जो लगातार नहीं सीखोगे, कैसे करते हैं कभी प्यार नहीं सीखोगे। और शेर सुनिएगा कि दूर हो जाओगे एक रोज सभी अपनों से, दूर हो जाओगे एक रोज सभी अपनों से, तुम अगर नरमी गुफ्तार नहीं सीखोगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दूर हो जाओगे एक रोज सभी अपनों से, तुम अगर नरमी गुफ्तार नहीं सीखोगे। और गिर पड़ोगे या कुचल देगा जमाना तुमको, गिर पड़ोगे या कुचल देगा जमाना तुमको, तुम अगर वक्त की रफ्तार नहीं सीखोगे। वक्त की रफ्तार, क्या बात है जी, क्या गिर पड़ोगे या कुचल देगा जमाना तुमको, तुम अगर वक्त की रफ्तार नहीं सीखोगे। और शेर सुनिएगा कि तुम अगर हाथ उठाओगे किसी औरत पर, किसी औरत पर। आरिफ साहब सुन रहे कि तुम अगर हाथ उठाओगे किसी औरत पर, आरिफ साहब सुनिएगा कि तुम अगर हाथ उठाओगे किसी औरत पर, फिर उठाना कभी तलवार नहीं सीखोगे। वाह वाह। लेकिन ये शेर हाथ उठाओगे किसी औरत पर, फिर उठाना कभी तलवार नहीं सीखोगे। और ठोकरे खाते हुए उम्र गुजर जाएगी, ठोकरे खाते हुए उम्र गुजर जाएगी, पहली ठोकर से जो सरकार नहीं सीखोगे। वाह वाह, क्या कहने। ठोकरे खाते हुए उम्र गुजर जाएगी, पहली ठोकर से जो सरकार नहीं सीखोगे। और मकतबे कैद से लाजिम है किलो दर से जुनून। वाह।
مکتب قیس سے لازم ہے کہ لو درس جنون ورنہ تم عشق کے اطوار نہیں سیکھو گے اور عمر بھر ان کہے لفظوں کا کرو گے ماتم ان کہے لفظوں کا کرو گے ماتم تم اگر جرت اظہار نہیں سیکھو گے کیا کہنے اور عمر گزرے گی یزیدوں کی طرح عمر گزرے گی یزیدوں میں یزیدوں کی طرح کربلا سے اگر انکار نہیں سیکھو گے یزیدوں کی طرح کربلا سے اگر انکار نہیں سیکھو گے اور تم اگر ہاتھ اٹھاؤ گے کسی عورت پر پھر اٹھانا کبھی تلوار نہیں سیکھو گے. اور 2 شعر ترنم کے ساتھ میں سنانا چاہتی ہوں آپ کو. جی ضرور. میرے دل سے جدا نہیں ہوتا. یہ عمران صاحب کو بہت اچھی لگتی ہے غزل، اس لیے میں سنا رہی ہوں کہ میرے دل سے جدا نہیں ہوتا، درد تو نہیں ہوتا، میرے دل سے جدا نہیں ہوتا، درد تو بھی وفا نہیں ہوتا. اور شعر سنیے گا جی. کہ میں نہ لاتی فلک سے آدم تو، یہاں میں ہوا کو بے قصور ثابت کر رہی ہوں جناب. میں نہ لاتی فلک سے آدم تو، گھر زمین پر بسا نہیں ہوتا، گھر زمین پر بسا نہیں ہوتا، درد تو بے وفا نہیں ہوتا، جو جلاتا ہے آشیانے کو، جو جلاتا آشیانے کو، وہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا، وہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا، درد تو بے وفا نہیں ہوتا. بہت شکریہ. وہ مرشد کے بغیر ادھورا رہے گا. مرشد 2 شعر مرشد کے ضرور ہونا چاہیے. اچھا بہت جی مرشد. کیا عجب ہے، کیا عجب ہے یہ معجزہ مرشد، کیا عجب ہے معجزہ مرشد، یہ معجزہ مرشد، ہم کو بھی عشق ہو گیا مرشد، کبھی عشق ہو گیا. کیا عجب ہے یہ معجزہ مرشد، ہم کو بھی عشق ہو گیا مرشد، اور جو نہ سوچا تھا خواب میں بھی کبھی، جو نہ سوچا تھا خواب میں بھی کبھی، جانے وہ کس طرح ہوا مرشد، جو نہ سوچا تھا خواب میں بھی کبھی، جانے وہ کس طرح ہوا مرشد. اور عارف بھائی شعر سنیے گا کہ تم نے دیکھا نہیں اگر اس کو، تم نے دیکھا نہیں اگر اس کو، تم نے دیکھا نہیں اگر اس کو، تم نے دیکھا نہیں خدا مرشد، تم نے دیکھا نہیں اگر اس کو، تم نے دیکھا نہیں خدا مرشد،
और कोई तहलील हो गया मुझ में, कोई तहलील हो गया मुझ में, गुस्से में हो गई जुदा मुर्शिद। कोई तहलील हो गया मुझ में, गुस्से में हो गई जुदा मुर्शिद। और शेर सुनिएगा कि इसलिए हैं लहू लहू आंखें, इसलिए है लहू लहू आंखें, लहू लहू आंखें हमने देखी है करबला। वाह वाह, इसलिए है लहू लहू आंखें हमने देखी है करबला मुर्शिद, और जिसमें औरत को छत मयस्सर हो, जिसमें औरत को छत मयस्सर हो, कोई ऐसा तो घर दिखा मुर्शिद। जिसमें औरत को छत मयस्सर हो, कोई ऐसा तो घर दिखा मुर्शिद। और तुमने देखा नहीं अगर उसको, तुमने देखा नहीं अगर उसको, तुमने देखा नहीं खुदा मुर्शिद। वाह वाह, क्या बात, सभी बहुत सदारती कलाम। इमरान 2 मिनट बात कर लूं मैं? जी जी जी, वैसे भी बुलाने वाले थे सैयद आरिफ मुस्तफा साहब को। अब ये हमारे दबस्तान शेर और नसर के सब्दे गुल हैं सैयद आरिफ मुस्तफा साहब, और ये हमारे सही वाले कायद हैं। और सैयद आरिफ मुस्तफा साहब, भाई ये ऑन एयर भी जाना है भाई, ये प्रोग्राम जो है ये यूट्यूब और फेसबुक पे भी जाना है। ऐसा है कि मैं अच्छे वाले कायद कह रही हूँ, कुछ अच्छे कायद भी होते हैं, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे कायद हैं हमारे निज़ार निगार हैं, उनकी बातें हमें तकवीत देते हैं, इनका हाथ ही बहुत है हमारे पीछे। बज़्म ज़राफ़त और दबस्तान शेर और नसर के जो हैं वो सदर हैं, और ये मैं इन्हें कहती हूँ कि ये दबस्तान शेर और नसर के सब्दे गुल है और उर्दू के नफाज के लिए मकजद। और कभी कभार ये मतलब कि हमारे हाथ आते हैं, लेकिन ये कसरे नफसी से काम लेते हैं और खुद बाद में दूसरों की तारीफें करते रहते हैं, उस चक्कर में होते हैं कि मुझसे कुछ जो है वो ना सुना जाए। लेकिन मैं गुस्ताखी माफ, हम इनको बगैर सुने नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं अर्ज करूं, मसला ये है कि मैं इतनी मजेदार चीजें सुन चुका हूं, और खास तौर पे मतलब जो नसर के हवाले से, नज़म के हवाले से चीजें पेश की है, गुफ्तगू भी मजेदार हुई है, लेकिन जो पेश तख्लीकात की गई हैं, और मुझे खुशी है कि मेरा लाहौर से मेरा बहुत प्यारा तरहदार दोस्त भी शामिल है, और भारत का नजीब भी शामिल है, सबीन साहब की सदारत है, और हमारे अरशद भाई भी हैं, और बहुत सारे लोग और भी पढ़ते रहे, इन सब ने यहाँ पे आज की बंद सजाया है। मैं इतने जायकों के दरमियान अपना जायका डाल के इनके जायकों के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे अपने लिखे वैसे कहीं ज़्यादा अच्छा मैंने अभी सुन लिया है, और मैं ये चाहता हूँ कि उसका जायका बरकरार रहे। इसलिए मैं अपने मजमून को मैंने पिछली दफ़ा भी तर्क किया था, इस दफ़ा भी मैं तर्क करते हुए मैं चाहूँगा कि आप सबको मैं कहूँ, हम इस तरह की शामें आपके ज़रिए से ही कामयाब बनाते हैं, आपके ताबून से ही भरपूर बनाते हैं। हमें खुशी है कि हमारा ये काम आगे बढ़ रहा है। हमें बहुत से मुख्तलिफ मुल्कों से लोग राब्ता करते हैं, हम उनसे राब्ता करते हैं, और उनका काम हम यहाँ पे पेश करने में कामयाब रहते हैं। बुनियादी मकसद मेरा अपना काम आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि दूसरों का काम सामने लाना है। मैं मोहतरमा वसीम जो है, वज़रा वसीम, उनकी बहुत पजीराई करता हूँ। वो निज़ामत के शोबे में एक बहुत बड़ा हवाला बनती जा रही है, और उसका ज़्यादा क्रेडिट जाता है मोहम्मद इमरान को, जो मेरी इस बज़्म ज़राफ़त के ना सिर्फ ये कि नायब सदर हैं, बल्कि बहुत मुतहर्रिक, फ़ाल और नहायत ही सरगर्म किस्म के हमारे मुंतज़िम हैं। तो मैं उन पर पूरा एतमाद करता हूँ। वो प्रोग्रामों को जिस टेक्निकल बुनियादों पर उस्तवार करते हैं, आज मैं आपको ये बताते बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि बेशतर तंजीमें इनके इस काम को कॉपी कर रही हैं। बेशतर तंजीमें अदबी जो हैं वो इनके बनाए फ्लायर्स की नकल कर रही हैं। बेशतर जगहों पर इनको खुसूसी तौर पर रब्ता करके कहा जाता है कि यार आप इतना उम्दा टेक्निकल सपोर्ट कैसे फराहम करते हो, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ चलो। लेकिन ये इनकी वफादारी है कि ये हमारे साथ खड़े हुए हैं। सबीन सैफ के साथ भी खड़े हुए हैं। सबीन सैफ जो हैं वो नज़्म का वो हिस्सा संभाले हुए हैं जिसने अदब की फ़ज़ा को एक नए दायरे से आशना किया है। बहुत पुराने चेहरे छाए हुए थे, सबीन ने आके लहजे को बदला, मिजाज को बदला, मुशायरे के रंग को बदला, उसके आदाब और उसलूब को बदला। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे लिए बहुत अहम है। मेरा अपना पढ़ना कतई अहम नहीं है, बल्कि मेरे लिए ज़्यादा अहम है कि मैं अच्छे लोगों को सुनूं। मैं बहुत देर तक सरशार हूँ इस बात से कि मैंने आज हुसैन शिराजी को सुना है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि
میں نے آج یہاں پہ نجیب کو پھر سے سنا ہے. نجیب بھائی جو ہے کمال کے آدمی ہیں, ان کے لیے بھی ہم الگ سے انشاءاللہ نشست کریں گے. آپ سب کی آمد پہ میں بہت مشکور ہوں. آپ مجھے اتنی عزت دیتے ہیں, میری بزم کو اتنی عزت دیتے ہیں. بزم ظرافت اور دبستان شعر و نثر دونوں آپ کی اس پروگرام میں بھرپور شرکت پر آپ کی بہت زیادہ پذیرائی کرتی ہے, شکر گزار ہے. انشاءاللہ ہم ایسی شامیں سجاتے رہیں گے, ایسی شامیں لے کے حاضر ہوتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب میں عمران صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تکنیکی معاونت فرما رہے تھے اور دبستان شعر و نثر کے منتظم بھی ہیں. جی عمران صاحب. یہ ایک منٹ, شیرازی صاحب کچھ کہہ رہے تھے. عمران, شیرازی صاحب کچھ کہہ رہے تھے. شیرازی صاحب سے کہیں کہ وہ ذرا ان کا مائک بند ہے, وہ کچھ کہہ رہے تھے شیرازی صاحب. یہ عارف مصطفیٰ صاحب, میں نے کہنا یہ تھا کہ قوموں کی زندگی میں آرٹ, کلچر اور ادب کی بہت بڑی اہمیت ہے. بے شک, بے شک. ایک چھوٹا سا واقعہ, دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے بجٹ میں ایک بہت بڑی رقم آرٹ, کلچر اور ادب کے لیے مختص کی گئی. اس پر جو ہاؤس آف کامنز تھا, وہاں لوگوں نے بہت شور مچایا. انہوں نے کہا کہ یہاں جنگ جو ہے, آدھے لندن کے گھر جو ہیں وہ ڈھہ گئے ہیں بمباری سے. یہاں پنیر اور ڈبل روٹی راشن پہ ملتی ہے. تو یہ آرٹ, کلچر اور ادب کے لیے پیسے کہاں سے رکھے جا رہے ہیں؟ اس پہ چرچل نے جواب دیا کہ اگر آرٹ, کلچر اور ادب اہم نہیں ہے تو یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں, یہ جنگ لڑ جا رہی ہے. تو چنانچہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس طرح کی ایک محفل کا انتظام و انصرام کیا, اور اس بات کے لیے میں آپ کا بھی تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے بھی اس میں شرکت کا موقع دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی عمران. ماشاءاللہ عمران صاحب, بہت بہت مبارکباد. میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, اور میں نہ شاعر ہوں نہ ادیب, البتہ طالب علم ضرور ہوں اور کچھ پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں. لکھنے کی تو اوقات نہیں ہے خیر, تو میں صرف پڑھا ہوں, لکھا نہیں ہوں. تو کچھ نہ کچھ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جتنا مل جائے پڑھوں اور پڑھے لکھوں کی صحبت اختیار کروں, تو 2-4 چھینٹیں ہم پہ بھی پڑھی جائیں. بنیادی طور پر تو میں ایک ٹیکنیشین ہوں اور انجینئرنگ کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے, اور بڑا خوش قسم کی انجینئرنگ ہے. کمپیوٹر سائنس بالکل خوش قسم کی انجینئرنگ ہوتی ہے. بس بیٹھے رہو اپنی جگہ پہ اور بس بیٹھے رہو اور ٹک 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 کی بورڈ کی, اور ہم تو باقی یہ کہ اس کے باوجود آپ کا شعری ذوق بہت اچھا ہے. بس میں نے کہا نا کہ کچھ تو چھینٹیں پڑھی جاتے ہیں, چند ایک چھینٹیں پڑ جاتے ہیں, تو کوشش کرتا ہوں. اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ اپنے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیتے ہیں, اور اگر میں کبھی آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے لیے یہ کچھ کوشش کرتا ہوں تو آپ لوگ آ جاتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو سن کر کوئی 2-4 الفاظ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. اس سارے سیٹ اپ کے دوران جو ہے وہ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ ایک شخص کون ہے جنہوں نے پورا پروگرام دیکھا تھا, جو آپ یوٹیوب پہ فیس بک پہ دیکھیں گے وہ کہیں گے یار یہ کون شخص ہے جس نے پورے پروگرام کے دوران بالکل بھی دھیان نہیں دیا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا. تو میں بتا دوں کہ وہ شخص ادھر ادھر اس لیے دیکھتا رہا کہ یہ نیٹ ورک میں پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا, اور یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے ایک اسٹوڈیوز جو ہے وہ ارینج کیا گیا ہے. یہ یہاں پر میں نے ایک اسٹوڈیو ارینج کیا ہے, اور یہ آپ دیکھتے رہیں کہ میں یہ سارا نیٹ ورک کو پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. تو جزاک اللہ. یہ اس اسٹوڈیو سے آپ کی جو ہے ٹرانسمیشن لائیو ہو رہی تھی. جزاک اللہ خیر. آپ کی تعریفیں, آپ کی کوشش ہے, یہ دیکھیے یہ پورا اسی لیے محفل اتنی کامیاب ہو پائی. یہ پورا جو ہے میرا اسٹوڈیو لگا ہوا ہے. اور نہیں بہت, میں عمران یہاں رک جائیے. جو لوگ مجھے یہ دیکھ رہے تھے, میں نے کہا صرف اتنی وضاحت ضرور کر دوں کہ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ یار یہ ایک شخص مستقل کبھی یہاں دیکھ رہا ہے کبھی یہاں دیکھ رہا ہے اور پروگرام پہ تو دھیان ہی نہیں دے رہا, اور یہ تو سن ہی نہیں رہا. تو بھائی سن تو رہا تھا, 2 کان میرے یہ یہاں بھی لگے ہوئے ہیں, اور جو اسپیکر بج رہے ہیں بڑے بڑے یہ دیکھیے یہ بھی ہے شامل. تو میں نے اپنی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے ایک اچھی پروگرام کو مینیج کر کے چلوں ٹیکنیکلی, اور بسم کی حد تک کامیاب رہا یہ تو جو دیکھنے والے ہیں وہ بتائیں گے, اور آپ لوگ یقیناً اس کو بتائیں گے. اور
बस इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। इमरान आपके लिए चैलेंज ये है कि हम जल्द ही शाम में शिराज़ी मनाएंगे इंशाल्लाह। मैं शायद लाहौर जाके वहाँ शिराज़ी साहब के पास बैठूं और वहाँ से ये प्रोग्राम आप कराची से उसको होल्ड करें। आप इसके लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर। चलें तो इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे कि जल्दी हम शाम का इनेकाद करें। इसके लिए मतलब है कि आप तैयारी पकड़ें और अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हमेशा अपने कामों में कामयाब रखे, कामरान रखे और हमारे और आपके दरमियान ये अच्छा ताल्लुक और गहरे ताल्लुक में बदले, खुशगवारी के साथ आगे बढ़े और हमारे आइंदा प्रोग्राम इससे भी ज्यादा कामयाब हो। बहुत शुक्रिया। वसीम साहिबा, हमारे पास कोई तकरीबन 5 मिनट हैं, अब आपकी बारी है। जी, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सवीन सैफ साहिबा का शुक्रिया, सदारत की मसरत पर आज वो तशरीफ फरमा थी। शिराजी साहब की ज़ियारत हो गई और बेकदावा शख्सियत से हमें मौका मिल गया। इसके अलावा जितने भी मेहमान शुरका हमारे जो है वो भारत से हमारे साथ शरीक हुए, नजीब भाई हमने उनसे दरख्वास्त की और वो शरीक हुए। अतर असलूबी साहब, उनका बहुत शुक्रिया। जितने भी उमर तन्हा साहब और ज़िया साहब, जितने लोग हमारे साथ शरीक हुए उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और अदबी उफ़क़ पर यूं ही जगमगाते रहें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारा दबस्तान शेर नसर और बज़्म ज़राफ़त जो है वो इसी तरह के प्रोग्राम करवाता रहे और मोहब्बतें जो है वो बांटता रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। अस्सलाम वालेकुम मारिफ मुस्तफा साहब, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़। बस कॉल ऑफ कर दीजिएगा प्रोग्राम को।